کچھ چیزیں ہزاروں سال بعد بھی نہیں بدلیں۔ آج بھی لوگوں کے گھر کے چولہے لکڑیوں سے جلتے ہیں۔ آج بھی عورت گھر کا پانی میلوں سے اٹھا کر لاتی ہے۔ کچھ چیزوں میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ کچھ چیزوں میں بہتری کی ضرورت ہے۔ اور کچھ چیزیں آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہیں۔ پاکستان لوگوں نے بنایا تھا، عام لوگوں نے بنایا تھا، اور پاکستان کا جو لیڈر تھا محمد علی جناح انگریزی میں تقریر کرتا تھا، سوٹ پہنتا تھا، اپنے لوگوں سے مختلف نظر آتا تھا، لیکن باتیں ان کے دل کی کہتا تھا اور لوگ اس کے پیچھے تھے۔ ان کو یہ نظر آتا تھا کہ ان کے لیے ان کی سماجی اور معاشی زندگی میں امید کی کوئی کرن ہے تو وہ اسی شخص کے پیچھے لگ کر ایک نیا وطن حاصل کرنا ہے۔ وطن حاصل ہو گیا، کیا ان کی زندگیاں بہتر ہوئیں؟ کیا ان کے بچے اسکول جانے لگے؟ کیا ان بچوں کی مائیں صحت کے لحاظ سے بہتر محسوس کرنا شروع ہو گئیں؟ کیا ان کی کھانے پینے اور غذا وغیرہ کی جو ضرورت ہوتی ہے انہیں اتنا ملا؟ بس ہمارے ملک میں جو غربت کے خاتمے کا سوال ہے، لوگوں کی خوشحالی کا سوال ہے کہ کیسے معاشی طور پہ خوشحال ہوں، اس کا سب کا دار و مدار ملک کی سیاست سے بہت گھیرا ہے کہ کون لوگ اقتدار میں ہیں، ان کے مفادات کیا ہیں اور عوام کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے۔ پاکستان کے شروع دن سے یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اس میں حکمرانی کے کرنے والے لوگ، یعنی جو آزادی کے بعد سے اب تک، ان میں زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ اس بیوروکریسی کا آیا جو انگریز کی خدمتگار تھی، چاہے وہ سیولین ہو چاہے فوجی ہو، اور اس کا سب سے بڑا اور قابل اعتماد جو علائن تھا، یعنی اس کا جو اتحادی تھا، وہ وڈیرا، جاگیردار، سردار، خان۔ اور یہ جو ملا ہے، مولوی، وہ خود بخود اٹیچ تھا، چاہے وہ خان سے اٹیچ تھا یا اس کا وڈیرے کے ساتھ تھا، اس کے لیے وہ نظریاتی گراؤنڈ بناتا تھا، یعنی لوگوں کو سکون دینا، لوگوں کو تسلی دینا کہ اللہ نے آپ کے قسمت میں یہ لکھ دیا ہے۔ سامراجی دور میں 1900 عیسوی سے کسانوں کے ساتھ منصفانہ سلوک روا رکھنے کی بہت سی کوششیں کی گئیں۔ در حقیقت مسلم لیگ نے کسانوں کو اسلامی انصاف کی ضمانت دی تھی۔ یہ جو مغربی پاکستان ہے، جو آج کا پاکستان ہے، یہ جو ہے آؤٹر اسکرٹس تھے پورے انڈیا کے، اور جس علاقے میں پاکستان بنا وہ انڈسٹریل سیکٹرز جو ہے یا انڈسٹریل جو سینٹرز تھے وہ 2 یا 3 تھے۔ پاکستان کی جو ساری لیڈرشپ تھی محمد علی جناح کو چھوڑ پہ، وہ عمومی طور پہ جو فورس تھی ان کے پیچھے وہ سارے فیوڈل لارڈز تھے، اور انہی فیوڈل لارڈز کی بنیاد پہ تھا، اور کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ یا صنعتی جو لوگ تھے وہ مسلم لیگ کے ساتھ اس طرح موجود نہیں تھے۔ لہٰذا ان کا کلچر اور روایات جو ہیں وہ اس ملک کے اندر ڈیموکریٹک اور ٹریڈ یونین یا لیبر پرو پیپل نہیں رہی۔ بنسبت پاکستان جب بنا، جو مذہبی جو تفریق ہوئی اس کے درمیان جو ہے لاکھوں لوگ اس میں مارے گئے، اور اس کا اثر یہ ہوا خصوصی طور پہ پنجاب
اور سندھ سے ایک بڑی مائگریشن جو ہے وہ انڈیا ہوئی. پاکستان جب بنا تو ایک ماس مائگریشن ہوئی اور بہت سارے سندھ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں سے اربن مڈل کلاس کے لوگ وہاں انڈیا گئے اور وہاں سے اسی کلاس کے لوگ زیادہ آئے. پنجاب میں تھوڑا ڈفرینٹ تھا, ایسٹ پنجاب سے ہر قسم کے لوگ آئے. وہاں پہ مطلب یہ کہ ایگریرین اکانومی تھی زیادہ اور وہاں ایک ایتھنک کلینزنگ ہو گئی. تو سارے مسلمان جو ہیں چاہے وہ کسان تھے, مزدور تھے, مڈل کلاس تھے, وہ آ گئے. تو اس وقت ہم پریپیئرڈ نہیں تھے اتنی ماس مائگریشن کے. تو وہ ایک تو ہاؤسنگ شارٹیج اسی وقت ہم نے فیس کی اور اس کا حل لوگوں نے یہ نکالا کہ جہاں جگہ ملی وہاں پہ وہ بیٹھ گئے. جو گورنمنٹ سرونٹس تھے ان کو تھوڑے بہت چھوٹے موٹے کوارٹرس مل گئے, لیکن جو غریب لوگ تھے جو گورنمنٹ میں نہیں تھے وہ ہٹمنٹس کے ذریعے انہوں نے اپنا مسئلہ حل کیا. کسانوں کے احتجاج کے نتیجے میں 1943 میں کمیٹی ٹیننسی لیجسلیشن تشکیل دی گئی, لیکن کمیٹی کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ اکثریت اصلاحات کے خلاف تھی. کمیٹی کے ایک رکن دیال مل دولت رام نے کہا تھا کہ ہاریوں کو کسان مالکان بنانا چوروں کو انعام دینے کے مترادف ہوگا. اس کے بیان میں جاگیرداروں کے منفی رویوں کی جھلک تھی. تو یہ جو اربنائزیشن ہوئی پارٹیشن کے نتیجے میں یہ بہت بڑے پیمانے پر ہوئی, مگر زیادہ تر جو اربنائزیشن ہوئی وہ پنجاب میں ہوئی, یہاں نہیں ہوئی, کیونکہ 80% جو مائیگرنٹس تھے وہ پنجاب میں سیٹل ہوئے, بلکہ 80 سے بھی زیادہ 82% جو ہے وہ پنجاب میں سیٹل ہوئے. اور ان کی سیٹلمنٹس نے پنجابی شہروں کو بالکل تبدیل کر دیا, خاص طور سے صدر پنجاب کے شہر, کیونکہ جو صدر پنجاب کے شہر تھے یہ سرائکی اسپیکنگ تھے بیشتر, اور یہ جو لوگ آ کے وہاں بسے یہ پنجابی اسپیکنگ تھے. تو ایک تناسب جو تھا آبادی کا وہ پنجابی اسپیکنگ لوگوں کے حق میں چلا گیا. جب پاکستان بنا تو یہ جو خطہ ہے اور جو ایسٹ پاکستان تھا جو اب بنگلہ دیش ہے, یہ دونوں زرعی علاقے تھے. زراعت کے ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, زرعی اصلاحات میننگ فل طریقے سے نہیں ہوئی. تو جس طرح کا ملکیت کا ڈھانچہ تھا 1947 میں وہ کم و بیش 1970 میں بھی اسی طرح سے تھا. پولیٹیکل پاور تھی وہ اسی طرح سے انٹیکٹ تھی, بلکہ وہ بڑھ گئی تھی. تقسیم سے قبل حکومت سندھ نے ہاری انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی جس کا چیئرمین ایک انگریز زمیندار تھا اور جو پہلی صورتحال کو برقرار رکھنا چاہتا تھا. جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اندر وہ سینسٹیوٹی نہیں ہوتی کہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو ایک حقوق کی نظر سے دیکھنا شروع کریں, اور اگر کوئی ایسے اقدام کیے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی ایک کنسیشن سمجھ کے حکومتیں کرتی ہیں. اور حکومتوں کو اب تک اس پاکستان میں خاص طور پر اس قسم کی ایک اویئرنیس اور وہ سینسٹیوٹی نہیں آئی کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. آپ بات کرتے ہیں قوانین کی, قوانین بہت اچھا ہے, وہ ایک پہلا سٹیپ ضرور ہوتا ہے, لیکن وہاں پر ہر بات ختم نہیں ہو جاتی. بہت سے قوانین اس ملک میں بنے ہیں جو اس لیے فیل ہو گئے کہ اس کے پیچھے ریاست کی جو سماجی پالیسی تھی اس کی بیکنگ نہیں تھی, اور اس میں عموماً ایسے قوانین ہیں جو کہ لوگوں کے معاشی اور معاشرتی حقوق سے منسلک ہیں. مثلاً یہاں پر لینڈ کی بات آتی کہ لوگ لائیولیہڈ پیدا کس چیز سے کریں, کس ذریعے سے روزگار کمائیں. آج کل ہمارے جو مختلف صوبے ہیں آپس میں دوستی کی بات تو کرتے ہیں, لیکن آپ بالکل کسی کے سامنے بھی آیا ہے کہ وہ دوستی کے پیچھے کتنی پرانی قسم کی یادیں ہیں اور ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے. جب آپ بار بار یونٹی اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا
इसका मतलब ही यही है कि यूनिटी है नहीं या दोस्ती है नहीं या कोई चीज़ कोई अंसर जो है वो मिसिंग है गोया। विजनरी की ज़रूरत होती, लेकिन बहरहाल अगर इन चीज़ों से शुरू से अगर हम इस पर गौर करते तो फिर ये होता कि आज आपके जो टेक्स्ट बुक्स हैं और आपकी जो अच्छे टीचर्स हैं, ये लोग वो उन बातों को न छुपाते कि जो हकीकत है, जिसकी समझने से ये जो हमारी 60 साल से जो तकरीबन तीसरी जनरेशन हो गई है, वो इन बातों को एक तो समझने की कोशिश भी करते, इसकी वजूहात भी मालूम करते और उसको मुझे यकीन है कि उससे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूँकि उनको कभी हकीकत से वाकिफ़ नहीं किया गया, इसीलिए बहुत सारी शिकायतें भी होती हैं और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं। शुरू में कुछ मंसूबे बने, जैसे पहला 5 साला मंसूबा। इस मंसूबे के साथ जो हशर हुआ, जब अप्रूवल हुआ तो उसमें काफ़ी सारी वो चीज़ें नहीं थी जो होनी चाहिए थी। हुकूमत पे नौकरशाही और जो फ्यूडल तबके थे, जागीरदाराना ज़हनियत रखने वाले तबके थे, उनका मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका था जिना और लियाकत अली के बाद। मशरक़ी पाकिस्तान वालों ने तो अपने लिए ज़रूरी इस्लाहात कर ली, मगरबी पाकिस्तान में ज़रूरी इस्लाहात को गोल कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो ज़राअत के माने हुए उसूल हैं कि अगर किसान एक मुनासिब क़िताए ज़मीन की मिल्कियत रखता है, उसको उसके लिए हुकूमत अपने एक्सटेंशन प्रोग्राम्स के ज़रिए सहूलतें मुहैया करती है, तो वो जो उसकी फ़ी एकड़ पैदावार होती है वो उसको बढ़ाता ही चला जाता है। जो बड़े फार्म्स होते हैं उनमें ज़्यादातर तो गैर हाजिर मालिकान होते हैं और उनको बहरहाल कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने में। मईशतदान तो यही कहते हैं कि जैसे जैसे फार्म का साइज़ बढ़ता है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है। हमारी अभी तक फ़ी एकड़ पैदावार दुनिया के तकरीबन सब ममालिक से ही कम है। सोनी माला दे नखेड़े पै गए, शांति दे सुपने सारे टह गए, नशे आज़ादी दे सारे ले गए, अब साडे हुन लुटेरे रह गए, गोले बारूदां दी लगी दौड़े। हमें बहुत एडवांटेजेस थे जब पाकिस्तान बना। सिंध और पंजाब के अंदर बहुत बड़ा इलाका जो है वो एक वास्ट ट्रैक्ट है और इसमें इरिगेटेड एग्रीकल्चर है, कनाल एग्रीकल्चर है। बल्कि कहा जाता है कि पाकिस्तान हैज़ द बिगेस्ट कनाल एंड इरिगेटेड सिस्टम इन द वर्ल्ड, जिसको हमने पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जिसके गलत इस्तेमाल की वजह से हमारे यहाँ जो डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस, जिसको सीपेज और सेलानाइजेशन कहते हैं, वो बहुत बढ़ गया है। तो डॉक्टर हमीदा खोड़ो ने एस्टीमेट किया है अपनी किताब में कि 65% ज़मीन जो इन बड़े जागीरदारों की थी वो उन्होंने बनियों से कर्जे लेकर उनको गिरवी की हुई थी, और यही सारे लोग सिंध की असेंबली में इलेक्ट होके आते थे और इन्हीं लोगों ने फिर ये करारदाद पेश की कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और वो सारे ज़मीनें उन्होंने वापस ले ली, बल्कि जो उनकी ज़मीनें पहले से बढ़ गई। तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स नहीं होने दी। नतीजा ये था कि जो नई वर्किंग क्लास यहाँ बन रही थी उसमें कोई सिंधी नहीं था। 10 से 15 साल थे, उसमें सनतकारी ज़्यादा यहाँ हुई, कराची में हुई, फिर हैदराबाद कोटरी में हुई, वहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप हुई, लेकिन सिंधी उसमें नहीं थे क्योंकि वो
जागीरदारी के बोझ के नीचे दबे हुए थे। जागीरदारी सिस्टम के और जो बहुत सारे नेगेटिव असरात होते हैं उनके साथ बड़ा हिस्सा ये कि जो लोग होते हैं उनकी ज़मीनों पे काम करने वाले, वो अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते, उनको इजाज़त लेनी पड़ती है जाने की। ज़राअत के ढांचे में कोई तब्दीली नहीं हुई। जैसे दुनिया भर में सनतकारी जो है वो मजबूत बुनियादों पर उस वक्त कायम होती है जब ज़रई इस्लाहात की जाएँ और ज़मीन से जो लोग बंधे हुए होते हैं, बेज़मीन लोग होते हैं, उनको ज़मीन मिले, बड़ी जागीरदारी का ख़ात्मा हो। तो उसी तरह ज़राअत की ग्रोथ जो है वो तेज़ी के साथ हो। जो जागीरदार थे उनके रिश्ते बन गए ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जनरल्स के साथ, फ़ौज का यहाँ पर कंट्रोल हुआ सियासत के ऊपर और मईशत के ऊपर। तो ये एक तरह का उनका गठजोड़ बन गया। और इसी तरह उनके साथ तीसरे जो थे वो मुल्ला जो है वो इकट्ठे हुए। तो ये जो रिलीजियस गिरोह या पार्टियां या अफराद थे इनको भी डिस्प्रोपोर्शनेट पावर मिल गई और पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पर एंटी कम्युनिस्ट अलायंस का हिस्सा बन गया 1954 से। और ये सारा जो था उसका एक पहलू ये था कि मज़दूरों को मुनज़्ज़म नहीं होने दिया जाए, क्योंकि मज़दूर अगर मुनज़्ज़म होंगे, उनकी ट्रेड यूनियनें बनेंगी, उनकी पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो वो लाजमी तौर पर तबकाती सोच पे इकट्ठा होंगे। फुल्लां दियां कंढियां नाल यारियां, हुम दे मौसम ने बड़का मारियां, चानने ते बंद होइयां बारियां, खुदकुशी नाल कोपलां सब हारियां, साम्राज्य भूत फिरदा चौड़े। हमारे मुल्क में पूरे जो ओवरऑल आज़ादी की तहरीक है, उस आज़ादी की तहरीक में माशी नुक्ता बहुत अहम था। आज़ादी के लिए लोग कोई भी खाली खुली आज़ादी के लिए नहीं लड़ता जब तक आवाम को ये ना पैकेज दिया जाए कि इस आज़ादी से आपको क्या मिलेगा। और आवाम को ये वादा किया गया था कि आपको जो है आज़ादी के बाद ज़रा इस्लाहत होगी। अंग्रेज़ ने जो जागीरें तकसीम की हैं बड़े बड़े लोगों को, वो जागीरें उनसे लेकर जो पैदा करता है, जो किसान है, जो भारी है, उसको दी जाएंगी। तो इस तरह उनको ये कहना कि आपको ज़मीनें मिलेंगी उनके लिए बड़ी यानी एक अच्छा ख्वाब। अभी भी मैं कहता हूँ कि कोई और पैकेज ना दिया जाए लोगों को, कोई इमदाद ना दी जाए, आप उनको वसीले दे दें, वसाइल ज़मीन के वसीला, पीने के पानी का वसीला, रहने के लिए जगह दे दें, कुछ उसकी बुनियादी चीज़ें डेवलप कर दें, बाकी घर वर वो खुद बना लेंगे। रोटी कपड़ा मकान अवाम अपनी मेहनत से खुद तामीर करेगा। तो मुस्लिम लीग के शुरू दिनों की करारदातें जो है उसमें ज़रा इस्लाहत की ज़मीनें किसानों को देने का वादा है। लेकिन बाद में ये हमें सारी प्रैक्टिस में देखते हैं कि जब जागीरदारों ने देखा कि कांग्रेस भी ज़मीनें तकसीम करेगी, और वहाँ तो मुमकिन लगा क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस बहुत स्ट्रांग थे। यहाँ के जो जागीरदार हैं इन्होंने सब ने मुस्लिम लीग का रुख अख्तियार किया और मुस्लिम लीग में शामिल होकर उन्होंने सारा वो जो माशी प्रोग्राम था मुस्लिम लीग का, उसको सिर्फ मजहबी प्रोग्राम बना दिया। यानी एक ही बात सामने रही कि इस्लाम के लिए बनाए, बाकी वो उसमें अवाम के हकूक़ की जितनी मकालमे हैं, जितनी करारदातें, उसको सब तहस-नहस कर दिया। पूरी सियासी तहरीक में मुझे नज़र आता है कि जहाँ पर भी हुक्मरान गिरोह देखता है कि मुझे नुकसान होने जा रहा है, वो उस नुकसान देने वाली फोर्स के अंदर चला जाता है। आप पीपल्स पार्टी का देख लें, मुस्लिम लीग का भी यही असर हुआ। पीपल्स पार्टी में भी रोटी कपड़ा मकान का वायदा हुआ और आप देखें कि सारे जागीरदार उसमें काबिज हो गए, और उसके बाद ज़ाहिर है कि रोटी कपड़े मकान का वादा पूरा नहीं करना था। लेकिन जैसे भुट्टो की हुकूमत आई, उसने कहा मैं ज़रा इस्लाहत करूँगा, सब वडेरे जागीरदार पीपल्स पार्टी में चले गए। हालांकि वो कह रहा है मैं ज़रा इस्लाहत करूँगा, फिर वडेरे क्यों चले गए? उसका साफ मतलब ये है कि उन्होंने उस पर अमल नहीं होने देना था। उनको ये पता था कि अगर हम बाहर रहे पीपल्स पार्टी से तो दूसरे लोग आगे आ जाएंगे पीपल्स पार्टी में और वो ज़रा इस्लाहत पर अमल करा लेंगे। अज भी बागां ते फुल तोड़े दा राज, कुक्कियां दे लहू दा चीला ते ताज, फेरे बाजा ने लकोया है अनाज, चंगे इंसाना दी अखे थोड़े, बेयकीनी पई यकीनू दस दी, जिंदगी ते मौत पई हस दी,
ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਕਾਰ ਕਾਰ ਵਸਦੀ। और हमने देखा है कि लैंड रिफॉर्म्स की बातें होती रही, लेकिन लैंड रिफॉर्म जेन्युइनली कभी आए ही नहीं। जहाँ पर जेन्युइन लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं वहाँ सोशल पावर और रिलेशनशिप भी चेंज हुई है और उससे बहुत फ़र्क पड़ा है सियासी सूरत हाल पर भी। और जहाँ पर आपके जो बुनियादी पावर रिलेशनशिप्स हैं वो बदलेंगी नहीं, वहाँ पर आपके यहाँ कभी आम आदमी की जो रोज़ी है या उसके हकूक़ का हसूल है उसके ऊपर कभी एक फैसिलिटेट नहीं होगा। फिर जब पाकिस्तान टूट गया तो एक अवामी हुकूमत आई। 77 में जो उन्होंने वाकई सही ज़रूरी इस्लाहात शुरू की, उसके बाद आने वाले डिक्टेटर ज़ियाउल हक की शरीयत कोर्ट में उनको गैर इस्लामी करार दे दिया गया और वो गैर इस्लामी करार देने का फैसला अभी तक बरकरार है। इसलिए जब तक वो फैसला मौजूद है यहाँ और लैंड रिफॉर्म होने का भी सवाल नहीं है। जो एक दफ़ा एक सब्ज़ इनकलाब आया था अयूब खान के ज़माने में, उसने मार्जिनलाइज कर दिया था छोटे फार्म्स को, क्योंकि उसमें जितने भी इनपुट्स चाहिए होते थे वो इनपुट्स उसके लिए ख़रीदना मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान में एक वज़ीर आज़म साहब आए, हमें बड़ी खुशी हुई कि वो पाकिस्तान के सबसे गरीब और सबसे छोटे सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जमाली साहब। उन्होंने एक ही माशी बयान कौम के नाम नशर किया और उन्होंने एक ही माशी बात की, और वो ये थी कि आइंदा कभी ज़रूरी इस्लाहात नहीं होंगी। जब ये कहा जाता है कि अच्छा भाई लैंड रिफॉर्म ना करो, बड़ी आमदनी कमाते हो, इनकम टैक्स ही दे दो, वही शायद गरीबों के लिए इस्तेमाल हो जाए। सारी दुनिया में आमदनी का मतलब होता है आमदनी। हमारे मुल्क में अगर आप जागीरदार हैं तो आपकी आमदनी पे टैक्स नहीं लगता और उसका फ़ायदा आप भरपूर उठाते हैं कि आप अपनी गैर ज़रूरी आमदनी को भी ज़रूरी आमदनी डिक्लेयर करके दूसरी आमदनी पे भी टैक्स बचा जाते हैं। बल्कि यहाँ ये फैशन हो गया है कि बड़े बड़े सरमायादार जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, सनतकार जो हैं, उन्होंने फार्म्स बनाए हुए हैं और उनकी बड़ी बड़ी इनकम ज़ाहिर करके इनकम टैक्स बचा है। इन्होंने आइंदा जितनी भी लैंड रिफॉर्म हो सकती हैं उनके ख्याल में, उसके मुताबिक अपनी ज़मीनें पहले ही इधर उधर के नामों पे लगा दी हुई हैं। आप कानून बनाएं, आपको पता चलेगा कि हमारे बड़े बड़े लोगों के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पुराने तरीके की लैंड रिफॉर्म अब मुमकिन नहीं रही। फिर ये देखें कि स्टेट लैंड है काफ़ी, लेकिन कभी कभी कुछ सियासी हुकूमतें ये कहती हैं कि हम स्टेट लैंड गरीबों में बांटेंगे। जैसे आजकल सिंध में ये कोशिश हो रही है, इनफॉर्मली लोगों का कंट्रोल है, उस पर बड़े बड़े लोगों का कंट्रोल। जब इस तरह से वो दी जाती है, जैसे पहले एक दो सियासी अखबार में ज़मीन दी गई, तो आपने देखा होगा कि वो दौर ख़त्म हुआ, वो ज़मीनें भी किसी तरीके से वापस हो गई। हुकूमत ने लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने के बजाय जदीदियत पर जोर दिया। यही वजह है कि तरक्की कम हुई। हमारे जो एडवाइज़र्स थे, उसमें ख़ास तौर से हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप जो था, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में चला जाए एकदम। और ये हमने लेट 50s से ये शुरू कर दिया कि हमने सारे जो हैंड पिक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैं उनको एंटरप्रेन्योर भी नहीं कहता, वो हैंड पिक लोग थे, उनको उन्होंने हर किस्म के कंसेशन दिए। वो लोग भी शहर की तरफ आने लगे जब उन्हें कोई जॉब्स नहीं मिले देहात में, और मीडियम साइज सिटीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। उसकी वजह से हाउसिंग शॉर्टेजेस अक्रॉस द बोर्ड हुई। अच्छा, जो रिच क्लास के थे और मिडिल क्लास के थे, उन्होंने तो मसले हल कर लिए कि गवर्नमेंट ने स्कीमें बनाई तो वो उन्होंने प्लॉट ले लिए सस्ते दामों। लेकिन जो गरीब लोग थे, जो वर्किंग क्लास के थे, उन्होंने जो भी स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ थी उनसे उनको कुछ हिस्सा नहीं मिला।
क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटजी थी हाउसिंग की वो भी गलत थी। पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसमें मेजर रोल स्मॉल और लैंडलेस फार्मर्स का है। तो इनकी जो होल्डिंग है वो 25 एकड़ से कम है। 79% ऐसे फार्मर्स जो हैं उनकी होल्डिंग है 1 to 10 एकड़, 1 एकड़ से लेके 10 एकड़ तक। अबाउट 600 जिनके पास 1 लाख से लेके और 1000 एकड़ तक लैंड है, जो किसी उसमें नहीं आते टोटल परसेंटेज में, 1% भी नहीं है, लेस देन 1%। इट इज़ टोटल अबाउट 600 पीपल जिनके पास 20,000, 50,000, 1 लाख। लेकिन